जल थल आकाश सभी से रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस समय आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के मदद से भी किया जा रहा है। कई इलाकों पे हेलीकॉप्टर जो है चलाया जा रहा है जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। हम जहां पर जा रहे हैं दरअसल ये विजयवाड़ा का मोस्ट इम्पैक्टेड एरिया है जो अभी भी काफी इलाकों में पानी भरा हुआ है। कोशिश हमारी ये है कि अपने आप को सेफ करते रहे और अंदर की तस्वीरें हम आपको तक दिखाते रहे। चैलेंज बहुत ज्यादा है और चैलेंज इतना ज्यादा है कि कई जगहों पर पता नहीं रहता कि गड्ढे हैं, क्या है, किस तरह की रोड है। तो इस चैलेंज के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और लोग जो हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अपने आप को बचाते हुए इन इलाकों से निकल रहे हैं। चाहे आप ट्रैक्टर के माध्यम से देख सकते हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं अंदर की तरफ। कहाँ जा रहे हैं ये अभी लोगों से हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हालत आप देख सकते हैं पूरे विजयवाड़ा की तस्वीर, इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देखिए ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा जो है लोग चला रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए हेलीकॉप्टर के मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मैंने जैसा आपको पहले बताया कोशिश है पूरे इलाकों में पहुँचने की जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे सर के ऊपर ही हेलीकॉप्टर है और इसके द्वारा ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। निगरानी की जा रही है कितना इम्पैक्ट पड़ा है। जो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से। और ये सिचुएशन है ग्राउंड पे इस समय, तो बहुत खराब सिचुएशन है इस समय। कोशिश हमारी ये है कि किसी तरीके से उस इलाकों में पहुंचे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया है, उन इलाकों में पहुंच करके आपको तस्वीरें कम से कम हम दिखा सकें कि आखिर कितना ज़्यादा प्रभाव इस इलाके में पड़ा है। तो अभी हम और अंदर जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या हालात है इस विजयवाड़ा के इस इलाके की। व्हाट्स योर नेम सर? Myself, my name is Babu Rao. I am the Secretariat member of the State Committee of CPIM. Okay, so what's the situation in ground zero right now and where we are right now? It is a very precocious situation. It is a uncomfortable situation. The half of the people of the Vijayawada was now the flood because of the Bodameru and Krishna river. Around 4 to 5 lakhs people are seriously suffered. This is the government is a totally failure in Andhra Pradesh because there was no warning to the people for the precautions. In the Velagaleru regulator, it was a 40,000 cusecs of water was released. There was no warning to the people. There was no safety measures for the public. Now the people are in the houses. There was no drinking water, no food, no electricity, and there is no milk. The government is a duty to supply this water and food only. They have no boats. They are using helicopters. The propaganda is very good, but the lower level, there was no help to the people. The people are suffering a lot not only in Vijayawada, the Bodameru. I am seeing this 30 from since 30 years. This is the serious situation. It is a natural calamity and also the government calamity also. The both together. So it is a avoidable situation. The natural calamity, it is not in our hands. But the precautions and the help to the people and the rescue operations, it is a totally is in a government. The totally it is a failure. The duty of the central government to announce it is a national calamity and not a sympathy words. It is the totally the help from the central government. It is the most necessary. The pity situation in Andhra Pradesh, it is the ruling TDP and opposition YCP. They both together, they are infighting. Their political fight is going on. They are blaming the previous government. They are blaming the Chandrababu Naidu. The people are suffering a lot. It is a situation at ground level. This is the fourth day. And how many days the people will in the floods in the water itself? Chandrababu Naidu is he is touring, but nothing has happened in the ground level. It is the voice of the people. It is the pity situation in Vijayawada. It is so many people are there, but there are no hearing from the public. They are not helping the public.
So they are hours together. They are now running for a water packet and a milk cover. What is the situation? So the central and state government, they should act and they protect our people and they will evacuate from here and place in a accommodative place. So this is the situation in Andhra Pradesh. It is a serious situation. Now it's going on. In the fourth day also, it is continuing this one. थैंक यू सर। विजयवाड़ा की सड़कें अब सैलाब बनती जा रही हैं। कई इलाकों में पानी इतना ज़्यादा आ चुका है कि अंदर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई स्कूल, कई दफ्तर, कई तरह के बड़े बड़े घर पानी में, सैलाब में समा चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये एक मेन रोड से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नर्सरी से 7th स्कूल है, जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे गेट पे कितना पानी है, अंदर भी पानी जा चुका है। ऐसी ही तमाम तस्वीरें जो हैं न्यूज़ नेशन पे आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं। रविंद्र करके एक सिनेमा हॉल है, वो भी पानी में समा चुका है। लोग जो हैं इस मेन रोड से अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कुछ राहत सामग्री मिल सके, कुछ खाना मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि उनके तक खाने का सामान नहीं पहुँच पा रहा है। हालांकि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सेना के जवान जो है और साथ में एयरफोर्स के जवान जो है बाकायदा हेलीकॉप्टर की मदद से जो है लोगों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि सड़कें सैलाब बन चुकी हैं, किस तरह से अब ये पूरा इलाका जो है नाव में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे, आगे आकर के आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा इलाका जो है वो मेन रोड पर नाव चल रही है। बड़ी बड़ी नाव जो है वो चलाई जा रही हैं ताकि लोगों तक जो है रेस्क्यू पहुंचाया जा सके, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। एक नाव, बड़ी सी नाव आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो लोग हैं वो किस तरह से इन रास्तों से होते हुए गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक छोटे से बच्चे को जो है रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पे तस्वीरें आप देख सकते हैं। नाव, बड़ी नाव जो है इस रोड पर अब सिर्फ नाव का ही सहारा है। या तो ट्रैक्टर चल रहे हैं या तो फिर नाव चल रही है। छोटी सी बच्ची को आप देखिए ज़रा, वो छोटी सी बच्ची को जो है रेस्क्यू किया गया है इस नाव की मदद से। और ये नाव जो है मेन रोड पर ये नाव चल रही है। तो इस तरह के हालात जो हैं वो इस पूरे इलाके में बन चुके हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विजयवाड़ा की, भयावह तस्वीरें, ये साफ तौर पे बताती हैं कि अभी बाढ़ का खतरा विजयवाड़ा में ख़त्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, तो कहीं पे जाने का रास्ता ही नहीं बचा है। हम और जगहों पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विजयवाड़ा के इन इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।